सो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे, विच इज ब्रेकिंग द हैबिट, I'm sorry, it's not breaking the habit of being yourself, miracles of your mind. ऑथर ही दूसरे हैं, उनके डॉक्टर जो डिस्पेंजा थे और इनके डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, दोनों ही बहुत महान लोग हैं। तो हम पार्टनर्स के बीच के रिश्ते के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वाला जो चैप्टर है, ये जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, फियांसे हैं, आपके जो भी हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, ये उनके बारे में है कि कैसे अपनी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा हारमोनियस बना के रखना। दैट इज व्हाट इट्स अबाउट। सो बिट्टी जी, आप पढ़ रहे हैं आज? जी जी हाँ जी। जी, हैप्पी एनिवर्सरी मैम। थैंक यू सो मच। बाय Okay, रिजेंटिंग। by resenting and fighting the situation, this woman would only make matters worse. If there is quarreling and bickering in the home, turn your attention away from personalities, environments, and conditions and focus your attention on your ideal, which is love, peace, and harmony. As you feed your mind upon these ideas, the subconscious mind will respond and bring about harmony. I am often asked this question: if one of the partners has an intense desire to terminate the marriage and the other has an equally intense desire to remain united in marriage, and they are both sincere, what will happen? In such cases, there is a mental tug of war. This is a house divided against itself. Sooner or later, it will dissolve. However, their attitude of mind may prolong the situation. The proper and correct way to solve this marital problem is to lift the thought above personalities and conditions and begin to direct your thought to your true desire, trusting to infinite intelligence within you to bring about the perfect solution. Through the right application of the law of your subconscious mind, you can bring harmony where discord is and resurrect peace where confusion reigns. Moreover, the right application of your subconscious mind can dissolve a bad marriage. Do not let foolish pride, anger, and desire to get even take you to the divorce court. When all of the while your heart is one with the husband you left, let love, goodwill, and kindness lead you back to the one you love in your heart. You can heal any problem through the right application and direction of your subconscious mind. Listening to the intuition and guidance which comes from the subjective wisdom within you would have perhaps prevented you from contracting the present marriage. You did not know how to use it. Now you do. If you had a bad start, you can adjust it now by using the procedure and techniques outlined in this chapter. By exalting and lifting up your partner in thought and feeling, and always cherishing the lovely qualities which brought you together, you can make your marriage a beautiful experience and joy forever. Yeah, so we'll just chew on this one. We kind of really need to understand that how does it all work. So सबसे पहले यहाँ पे है that अगर constant quarreling और ये अगर हो रही है ना, कॉन्स्टेंटली, अगर आपको लग रहा है कि घर की वाइब ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट, आपको मेंटल चैंट, इट टेक्स ओनली वन पार्टनर टू हैव अ परफेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, जरूरी नहीं है सामने वाला तो इसके उसने तो ये किताब नहीं पढ़ी हुई ना, तो उसको नहीं पता है कि किस तरह से मेंटल एटीट्यूड और एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन क्या होती है। लेकिन आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हो, जो यूट्यूब पे हैं और जो बाद में सुनेंगे, उनको ये पता है। तो कभी भी परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए दोनों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक जना अपनी एनर्जी अगर शिफ्ट करता है तो दूसरे की एनर्जी अपने आप शिफ्ट हो जाती है।
और अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो फिर आपको एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो पर्सन वैसे भी अपने आप से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में लव है और आप जनरेट करते हो लव, तो उसकी जिंदगी से लव आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज इन्होंने लिखी है जो बताई है कि इफ somebody इज कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग इन द हाउस, और आपको किसी इंसान की कोई चीज पसंद नहीं है, तो और वो इंसान आप शांत रहो। ठीक है, फर्स्टली यू हैव टू लर्न टू बी क्वाइट, और आपके मन में उसकी नेगेटिव चीजें एक्शन रिप्ले होती रहती हैं बार बार। सो इंस्टेड इन योर माइंड यू नीड टू थिंक लव पीस जॉय हैप्पीनेस, लव पीस हार्मनी, लव पीस हार्मनी, लव पीस जॉय हैप्पीनेस, लव पीस हार्मनी। दीज आर द वर्ड्स। सेंटेंस भी नहीं बोल रहे हैं, इनको सेंटेंस भी कुछ फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। लव पीस हार्मनी, लव पीस हार्मनी, लव पीस हार्मनी। शब्दों में पावर होती है। शब्दों की एनर्जी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रांसलेट करके उसको इमेज में डालता है कि लव पीस और हार्मनी कैसे दिखते हैं, और उसको डाउनलोड करता है। तो अब आपकी एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। पहली चीज इन्होंने ये बताई है। दूसरी बात, दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया है दैट अगर दो लोग हैं पार्टनर्स, उनमें बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है और उनको लग रहा है दैट वी नीड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब बियॉन्ड समथिंग होता जा रहा है और बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई है, लेकिन दोनों बहुत सिंसियर है। मतलब दोनों आइसोलेशन में बहुत अच्छे इंसान है, दे आर नॉट बैड एज पीपल, दे आर रियली नाइस। तो फिर इन दैट केस जो एक पार्टनर जो एटलीस्ट जिसको पता है कि लव पीस हार्मनी वाली वो चीज है, तो वो अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करे। एंड इट इज समथिंग लाइक मैजिकल रिलेशनशिप वाला चैप्टर जिन्होंने लिखा है ना, ट्राई टू डिराइव दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटीज एंड कंडीशंस जो आपको अपने पार्टनर में ठीक ठाक लगती हैं, अच्छी लगती हैं। आपको याद है ना चैप्टर नंबर 3 क्या था? यही था हमारा मैजिक बुक में, कि आप 5 एस्पेक्ट्स उसके रोज ढूंढ रहे हो, जिसमें आप लिख रहे हो दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू सो एंड सो फॉर हैविंग द हैबिट ऑफ ऑलवेज बीइंग पंक्चुअल। तो हो सकता है इंसान की आपसे बनती नहीं हो, लेकिन वो इंसान पंक्चुअल बहुत है, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। फिर आपने सोचा कि अच्छा, उसने एक बार आपके बर्थडे पे सरप्राइज दी थी, जबकि वो बहुत एक्सप्रेशन वाला इंसान नहीं है ना, या वाली इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके बर्थडे पे सरप्राइज दी थी एक बार, बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज थी। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू सो एंड सो, उनका नाम लिख के, दैट गिव मी अ ब्यूटीफुल सरप्राइज ऑन माई बर्थडे एंड हैड मेड माई बर्थडे ट्रूली मैजिकल। ठीक है, फिर तीसरी चीज, आई एम सो ग्रेटफुल टू सो एंड सो दैट यू गॉट फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड टू वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर। है ना, ये भी फ्रीडम हो सकता है दी हुई हो, स्पाउस ने दी हुई हो आपको, या पार्टनर ने दी हुई हो, कि आप जो चाहते हो करना वो आपको कभी रोक टोक नहीं की है। जो आप पहनना चाहते हो कपड़े, वो आपको पहनने का फ्रीडम था। ठीक है, फिर आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू सो एंड सो पर्सन बिकॉज आई कैन ईट एंड दैट पर्सन हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड माई चॉइस ऑफ कुजीन्स एंड फूड। है ना, हो सकता है आपको नॉनवेज खाना बहुत पसंद हो, लेकिन आपका पार्टनर सेमी वेजिटेरियन हो या ज्यादा वेजिटेरियन, या घर में नहीं बनना पसंद, लेकिन आपको हमेशा खाने का फ्रीडम दिया है। सो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट उस पार्टनर की वजह से यू हैड सम गुड मोमेंट्स ऑल्सो। इस तरह से, तो इस तरह पांच पांच चीजें लिखो, जो जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फिर उनके एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटीज, या उनमें जो कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं, उनके उन एस्पेक्ट्स को ध्यान दो जो उनमें पॉजिटिव है, और उन एस्पेक्ट्स को इग्नोर करो जो उसमें नहीं है। एक पार्टनर को तो ये करना ही पड़ेगा ना, एंड इट हैज टू बी एज ओनली, बिकॉज हमें अपनी जिंदगी तो हील करनी है। सो इस तरह से वी विल सी दैट दैट पर्सन विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन अ डिफरेंट वे नाउ। मतलब, और ये करना पड़ेगा, देखो इट टेक्स 21 days to 66 days टू चेंज द आउटर वर्ल्ड। तो आपको ये करना, लगातार करना पड़ेगा, और जिटरी मत हो सकता है करते करते आपको 15 दिन हो गए हो, आप बोल रहे हो कि देखो अभी भी कुछ नहीं हुआ, 15 दिन से मैंने ये किया है। ठीक है, इसमें देखा ना हमने, वो बलून सरेंडर करने के लिए लिखा हुआ था। आप अपना काम करो, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने किसी का कुछ अच्छा किया हो, सोचा हो, और उसका आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा नहीं होता। ये लॉ होती है, जैसे सूरज सुबह आता है, उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ जब आप अपनी एनर्जी डेलिबरेटली शिफ्ट करने की कोशिश करते हो, यू विल 101% गेट द रिजल्ट। इट्स अ लॉ, नोबडी कैन डिफाई इट। ये सब भगवान भगवान की रचना होती है, इनमें आप चाह के भी कुछ आप नेगेटिव सोचोगे, आप बोलोगे कि 15 दिन से मैं ये रोज कर रही हूँ और अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसलिए निश्चिंत रहो,
ऐसे ही थोड़ी ना श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कर्म किए जा फल की इच्छा न कर, बिकॉज फल तो आएगा ही आएगा. Whatever you sow is what you reap. So you are sowing 5 blessings every day for that one person. How will you not get the result? Obviously you're going to get the result. है ना? So इसीलिए, और अगर अगर मैरिज को डिसॉल्व होना ही होता है, अगर यूनिवर्स को भी लगता है कि दोनों का साथ में रहना वायबल ही नहीं है अभी, बिकॉज एक्सट्रीम एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट है. देखो, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड भगवान आपकी डेस्टिनी भी देख सकते हैं, है ना? आगे आप भी कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी से निकल के बाहर जाके वो आउटकम एंड एवरीथिंग गेज करके वापस अंदर आ जाता है. इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है. तो अगर ऐसा है दैट आप बहुत अच्छे जोन में हो, लेकिन फिर भी अगर मैरिज डिसॉल्व हो रही है, यानी कि सेपरेट हो रहे हैं, तो होने दो. प्रकृति का नियम, मतलब ये गॉड की वो है, इट इज द विल ऑफ द गॉड. वही ना, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, मनचाहो हो तो अच्छा, लेकिन अनचाहो हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो फिर भगवान का डिसीजन होता है. सो अगर एक्सट्रीमली टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें आगे जाके आपका बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, तो गॉड आपको बचा लेंगे वहां से. आपको विल मेक यू टेक 2 steps behind so that you can walk on your different path. And of course, a beautiful partner will come to your life a little later, but it is okay. ठीक है, बट आपके दिल में कोई एंग्स्ट या वो सब नहीं होना चाहिए दैट ये कैसे हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सालों से इतनी गड़बड़ रिलेशनशिप चल रही थी, है ना? So that is what it is. So ये कहते हैं कि ये through the right application of the law of subconscious mind, you can bring harmony जहां पे discord है, and resurrect peace and confusion reigns. है ना? जहां पे confusion rule करता था, वहां पे peace situation आ जाती है, because आप love, harmony, peace लगातार बोल रहे हो. उसके बावजूद अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर भगवान की मर्जी कुछ और होती है. So that is what it is all about. फिर हम, टाइम है तो हम एक पैराग्राफ आगे पढ़ लेते हैं. अच्छा, न्यू चैप्टर, द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस. ये गाइडेंस किसका होता है? यूनिवर्स का. द गॉड विद इन, द सबकॉन्शियस विद इन, जो हमारे अंदर ही है. हमारी जिंदगी में एक भगवान भी है ना. कहते हैं दैट देयर इज गॉड इज लव, लव इज गॉड, एंड गॉड इज विद इन एवरी पर्सन. एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट. इसका मतलब ऊपर नीचे आगे और पीछे भगवान है हमारे, है ना? सो वो जो सबकॉन्शियस माइंड के रूप में है, तो वहां से अगर गाइडेंस आप लोगे तो आपकी जिंदगी वैसे ही बहुत अच्छी होगी. तो हम शुरू कर लेते हैं. जस्ट 1 or 2 पैराग्राफ्स, लेट्स रीड. हाँ जी, प्लीज पढ़िए. Chapter 6, The Subconscious Mind and Guidance. In explaining the workings of subconscious mind to our recent college class, one of the men present said that the answer to his problem came to him while he was shaving. The reason for this was that while he was shaving, he was relaxed. Then the wisdom and intuition of subconscious mind came to the surface mind. This man had been giving intense conscious application to his problem for several days. By adhering to the following instructions, he got results. As he was about to go to sleep at night, he would say, I am now turning this request over to my deeper mind. I know it has the answer and I will receive it. अच्छा, आई थिंक बेटी जी हम इतना ही पढ़ते हैं अभी. Okay, ma'am. Yes, Okay. because we Thank also you. have yesterday's 2 experiences pending, तो वो भी ले लेंगे because आज work day है, so we'll finish on time also. Thank you so much. It's Thank always you. a pleasure listening to your voice. Thank आज you. दोनों admins ने पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, ma'am. Thank you. क्योंकि आप लोग सब हमेशा बिहाइंड द सीन रहते हो, जब आप फ्रंट ऑफ द सीन आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है. And Thank ma'am, you B so square, much. Bharti and Bitti. हाँ B square. हाँ, बी स्क्वायर. Thank बी स्क्वायर ना, ये you, दोनों Lancaster. बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं. पीछे से लोगों के लिए अच्छा करना. आज ये सामने से जब आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. Thank you. Yeah. Thank ओके, you so तो much. ये वाले चैप्टर में हमने देखा कि ये जो मतलब हमारे अंदर एक इनर गाइडेंस सिस्टम है ना. जैसे एस्टर एंड इब्राहिम हिक्स हमेशा बोलते हैं कि जो जीपीएस आपको चाहिए होता है ना, वो आपके अंदर ही होता है. सो जो जीपीएस सिस्टम जिंदगी का, लाइफ का, तो इसमें एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है. और ये किताब बाय द वे खत्म होने वाली है हमारी. ये छोटी सी किताब थी एक्चुअली. पिछली किताब थोड़ी हैवी थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि इस बार हम थोड़ा सा इजी
थोड़ा सा इजी रहते हैं क्योंकि ब्रेकिंग द हैबिट वाज वेरी हैवी। तो अभी ये इजी है, अब अगली बार आपको आपको एक और हैवी बुक मिलने वाली है, लेकिन वो हमारे अंदर से वो सारे टूल्स लेके सबकॉन्शियस माइंड को वर्क करके वो डेक्स्टर्स लैब की तरह ठीक करके फिर वो बाहर निकलेगी। जो नेक्स्ट बुक भी हम करेंगे वो फिर से हम थोड़ी हैवी करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये अभी फन वाली इजी वाली किताब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई क्लैरिटी चाहिए, किसी सवाल का जवाब चाहिए, दिमाग में कुछ चल रहा है जिसका आपको हल चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन चाहिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू मेनी एडवाइस फ्रॉम पीपल हियर एंड देयर, टर्न टू द सबकॉन्शियस माइंड। अंदर से जो आवाज आती है जिसको हम गट इंट्यूशन हंच इंस्पिरेशन जो भी बोले, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की आवाज होती है। कई बार होता है ना, कहीं जाने का मन करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मैं लाजपत नगर दोपहर को एक स्टोल खरीदने के लिए गई थी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम नॉट अ शॉपaholic, डेफिनेटली नॉट। तो मैं लाजपत नगर गई थी स्टोल खरीदने के लिए क्योंकि मुझे वहां वीएलसीसी में घुसना था। So you see how universe orchestrated? I just went there and दोपहर का टाइम था, 3-4 बज रहे थे और मैं उस वक्त एक कॉलेज में पढ़ाती थी। एंड आई वेंट, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक मुझे 12 साल तो हो ही गए वीएलसीसी में। ये मेरा बाय द वे शॉर्टेस्ट स्टिंट है किसी जॉब में। मेरे जॉब टेन्योर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं। आई डोंट लीव जॉब्स, ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, आई मेक इट वर्क देयर, बिकम सुपर सक्सेसफुल, फिर अगर मुझे छोड़ना होता है तो मैं छोड़ती हूँ। Not out of angst and not out of this that, oh, I'm so fed up, this is not working. Yeah, why is it not working? It is not working because it is my energy. So I will first make it work, become super successful, then I will move on to the next job, that way. So इस तरह से होता है। तो वो हंच क्यों आया था कि दोपहर को उठो। मैं दोपहर को ना नैप लेती थी क्योंकि सुबह कॉलेज जाना होता था, तो 8:30 बजे से क्लास होती थी मेरी कॉलेज में। 8:30 बजे से क्लास नहीं, 8:30 नहीं, 8 बजे से होती थी, 8 AM। 8 AM से क्लासेस होती थी, तो सुबह बहुत कुछ करके सब कुछ घर वर का करना, जस्ट लाइक नो मैटर हाउ बिग दिस थिंग यू आर, यू ऑलवेज अ होम मेकर ऑल्सो। तो वो सब कर करके then I used to come and take a nap. That day I didn't take a nap. I just went, something telling me to go to like Lajpat Nagar here to buy a stole of all the things. So, and then I went there and then I saw there was a VLCC office and I didn't know that VLCC, what it's like other education, this courses, that courses. I always thought that VLCC was just centers, like centers, जो VLC centers होते हैं. So I just, and I knew VLCC was personal care also, products भी होते हैं इनके. मुझे नहीं पता था कि it is big time into education. And then I just entered and I asked, I just wanted to know about this. So this person who was standing told me that, that are you a nutritionist? So I said yes, and that was Ambika Batra. She's taken a transition now at the age of 36 only, but she was the person who made me beautiful. So she says, अच्छा मैंने भी LIC से, Lady Irwin College, Delhi University से nutrition किया हुआ है, but I'm the area head of Delhi. I said okay, and then I just kind of, and she said that why don't you, give your CV or something. So मैंने कहा I don't know, मुझे कभी CV बनाना ही नहीं पड़ा आज तक। तो हाँ, बायो बनाना पड़ता है बिकॉज कॉन्फ्रेंसेस में वो मेरा बायो बोलते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास सीवी है ही नहीं, आई हैव नेवर नीडेड वन। सो शी सेड डजंट मैटर, जस्ट गिव योर नंबर। So I left my number behind. Next day, I get a call from the secretary of the CEO of the company, Mr. Sameer Srivastav, and said that sir wants to meet you at Gurgaon corporate office, and the rest is history. Okay, so how do you get this hunch? Because the desire, I was just telling one of my friends, Vandana Jain, about it, that I want to get into education. This was August. So, like whatever you keep thinking within yourself, you'll get the answers from within. There's a subconscious mind taking you to places. Everything happens for a reason. अगर आप किसी country भी जा रहे हो ना, कुछ वजह है उसकी, कुछ ना कुछ तो है ना? There's always a bigger reason why something is happening in your life, and something good is happening in your life. That is what it is. तो ये जो इंसान था, इसको शेविंग करते करते इसको एक बहुत अच्छा आइडिया आया। शेविंग करते करते, क्यों शेविंग करते करते? क्योंकि उस वक्त आपका माइंड बहुत रिलैक्स्ड होता है एंड यू फोकसिंग ऑन डूइंग व्हाटएवर, द रेजर इन योर हैंड एंड ऑल दैट। सो इस तरह, जैसे मुझे जिम में आता है कोई भी ब्रिलियंट आइडिया, इवन मास्टरमाइंड बॉडी का नाम भी मुझे जिम में ही आया था। मुझे जिम में ही आइडिया आता है, मैं प्रिया को भी बताती रहती हूँ, मैं जिम में ना $1,000,000 आइडियाज आते हैं। मुझे एक चीज का नाम पता लगता है, मुझे किताबों का नाम पता लगता है, मुझे ये समझ में आता है कि मुझे कौन सा नेक्स्ट कोर्स लॉन्च करना है, कौन सी कोर्स की किताब लिखनी है।
ऑल दीज थिंग्स, सो व्हेन वी आर रिलैक्स, सो जैसे इस इंसान को शेव करते करते आया था, मुझको जिम में आइडियाज आते हैं, शायद मैं वहां पे बहुत एलिमेंट में होती हूँ अपने, आई एम वेरी रिलैक्स्ड एंड लाइक so much easy because I love my workouts and they've become like my skin now. सो मुझे बड़ा मजा आता है, चाहे मेरे ट्रेनर बोले कि आपको इस बार 10 किलो वेट से ये करना है, आई एम वेरी लाइक आई से आई डू इट, दैट वे। चाहे मैं उसके रेप्स कम कर देती हूँ, बट आई डू इट एंड आई गेट $1 million आइडियाज इन माई जिम ऑल द टाइम, कहीं जाने का, कुछ खरीदने का, किसी को फोन करने का, रैंडमली। तो इस तरह से हमको पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा एक्टिवेटेड होता है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन स्टैब्लिश रहता है। नॉर्मली हम लोग बहुत फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं ना, कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, करना है, परेशान, ऐसा ऐसा है, वैसा है। तो इंस्टेड बी इन दैट काम जोन, है ना। ट्रस्ट एंड सरेंडर एंड लव एंड ग्रेटिट्यूड जब आपके लाइफ में होगा, तो आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही रहोगे। नहीं तो डेलिबरेटली एक्टिवेट करो गहरी लंबी सांसें लेके। सो व्हेन यू डीप ब्रीथ, यू एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय डिफॉल्ट, और उस वक्त अब उसी जोन में रहो। ट्राई टू बी मोर काम। तभी मैं बोल रही थी कि सबसे अच्छा तरीका होता है काम रहने का, दैट आप दिन में 3-4 बार, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप गहरी लंबी सांसें लो। आप हमेशा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहोगे और कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब करेगी नहीं। अगर आती भी है डिस्टर्बिंग वाली चीजें, देन दे पास ऑफ वेरी इजिली, लाइक यू गेट बैक इनटू बीइंग इन योर ओन एलिमेंट ऑफ काम, पीस एंड हार्मोनियस। और ये अपने आप आपने देखा होगा कि आप सबके बिहेवियर में ये बहुत फर्क आया होगा with the passage of time, that nothing troubles you. It will trouble you for a while. Human emotions are always there, but एकदम से काम हो जाते हैं हम उसके बाद, मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। हमको नॉर्मल आने में अब टाइम नहीं लगता है, नॉर्मल बहुत आराम से हो जाते हैं। सो दिस इज द पावर। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको आइडियाज आएंगे, बिकॉज अब आपका क्रिएशन का मोड शुरू हो गया है ना, साइंस के हिसाब से। फाइट एंड फ्लाइट मोड से आप क्रिएशन के मोड में आ गए हो। अब क्रिएशन के मोड में जब आप होते हो, आपको अमेजिंग आइडियाज, बिकॉज सबकॉन्शियस अब कॉन्शियस माइंड में आइडियाज देना शुरू कर देता है, और आपको सडनली ऐसे लगेगा कि मेरा ये करने का बहुत दिल कर रहा है, या कुछ कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जो आपको कुछ पर्सपेक्टिव देगा किसी चीज का, जो आपका क्वेश्चन था अभी तक अंदर चल रहा हो। इस तरह से जिंदगी आगे बढ़ती है। तो इसने उस इंसान से, ये जो शेव करते करते जिसको आइडिया आया था, इसने जेन्युइनली क्वेश्चन पूछा था रात को सोने के पहले अपने आप से। क्वेश्चन ये पूछा था, आई एम नॉट टर्निंग दिस रिक्वेस्ट, कोई चीज थी इसके दिमाग में जो चल रही थी, तो उसने ये कहा था, आई एम टर्निंग दिस रिक्वेस्ट ओवर टू माई डीपर माइंड, आई नो इट हैज द आंसर एंड आई विल रिसीव इट, आई नो दैट इट हैज द आंसर एंड आई विल रिसीव इट। अब मैं अपना, मेरे मन में जो ये सवाल है, अब मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं, अपने डीपर माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, और मुझे पता है आपके पास जवाब है और आप मुझे बहुत जल्दी इसका जवाब दे दोगे। उसने ये बोला, और उसको शेव करते करते उसका जवाब मिल गया। This is about the entire process of asking question to your subconscious mind and activating your inner guidance system. Activate करने के लिए आपको deep breathing करना जरूरी है दिन में 3-4 बार, नहीं तो दिमाग अशांत रहता है। शांत दिमाग में आपको हंचेस, इंस्पिरेशंस, आइडियाज आते हैं। लोग मिलेगा, कोई इंसान मिलेगा, किसी का फोन आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो आपका क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। सो आज हम इतना ही कर रहे हैं, फिर हम बाकी का इनर गाइडेंस सिस्टम, ये बहुत पावरफुल चैप्टर है। ये तो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं था, तो ये हम ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फुल टू यूज कर पाए पूरी तरह से। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इन लाइफ कीप्स थ्रोइंग अस इन सर्टन सिचुएशंस वेर यू डोंट नो व्हाट इज द आंसर. So now when we have this power, we have this entire thing, in the mind, God sitting inside us and telling us and being our GPS system. है ना, इंटरनल नेविगेशन है ये हमारी. सो दैट इज व्हाट इट इज. हाँ जी भारती, प्लीज बोलिए. First of all, good morning, ma'am, and happy wedding anniversary to you. Thank you so to much. Good morning. Priyanka Shyamji, to Priyanka Advani, and to Neha ji. Thank So, you so this chapter came in my life whenever I have that work related to collective, which I really don't want to do. And भगवान जी कहते हैं तुम्हारे कर्मा बेटा उसी से कटेंगे, करो चुपचाप. So I guess again maybe that's why it came. Like yesterday also I was working and I was like कि नहीं यार ये नहीं करना होता मुझे. But then yeah, I guess it's just I'm meant to do. So I have a question.
which I feel it's for everyone's mind. So I thought to ask in general. So तीन practices की जब हम बात करते हैं, have a magical day chapter 14, today's chapter 18, magical to do list, and magnificent outcome chapter 21. So earlier people used to make magnificent outcome and have a magical day. अब आज जो आपने एग्जाम्पल दिए मैजिकल टू डू लिस्ट के लिए, फ्यू ऑफ योर एग्जाम्पल्स, आई वाज थिंकिंग ये सारे तो हैव अ मैजिकल डे में डेली मैं कर रही हूँ, तो हम इस तीनों को सेग्रीगेट करने के लिए आप कुछ ऐसा बता दें इन जनरल, क्योंकि ये बहुत बार सेम हाँ, डाउट आते लोगों हैं. का क्वेश्चन हो सकता तो है. आई थॉट तो टू आस्क इट फॉर हैव अ कौन सा एक आप बोल रहे हो, मैग्निफिसेंट आउटकम और एक मैजिकल टू डू लिस्ट, इनमें डिफरेंस? एंड मैजिकल टू डू लिस्ट, हैव अ मैजिकल डे एंड अच्छा, मैग्निफिकेंट आउटकम. मैजिकल डे. आज वाला जो था वो कंफ्यूज कर गया थोड़ा सा कि ये सब तो हैव अ मैजिकल डे में कर रहे हैं, हाँ, ओके. जिसे आपने तो कहा हैव अ मिलके डे. मैजिकल डे जो होता है उसमें हम पूरा दिन डिजाइन कर रहे हैं. उसमें हम ये भी बोल रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स दैट आई गॉट द कैब. सपोज आप आउट स्टेशन है तो उसमें ये भी आप लिख रहे हो पूरे दिन भर में सब कुछ हुआ उसके बारे में लिख रहे हैं. टू डू लिस्ट आज की नहीं होती है. टू डू लिस्ट होती है अब अगर आज मुझे कोई बता भी रहा है, मान लो कि बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर मिल गया और मुझे अपने बालों को अच्छा रेजर कट देना है, लेजर कट जो भी बोलते हैं वो करना है, एंड आई रियली दिस थिंग. सो इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग इट टुडे. इट इज रिटन इन माई लिस्ट. इट कैन कम टू मी ऑन डे नंबर 4. ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई बैंक का वो है, लोन अप्लाई करना है, दैट लोन इज नॉट हैपनिंग टुडे, आई विल अप्लाई इट मे बी टुमारो और समथिंग. अपने आप वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है दैट आई गो एंड एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. सो इट्स नॉट हैपनिंग टुडे. जैसे अगर मैजिकल लाइक सो जो डे होता है वो सुबह से रात तक का होता है. हैव अ मैजिकल डे. That today, that thank you universe so much that I had a great workout in the gym today. Thank you universe so much that my drive to work was so comfortable, so easy, and so beautiful. I'm so grateful that all my interactions today were so positive and happy. I'm so grateful that I made a wonderful presentation for my webinar today. I'm so grateful that that webinar had a content that touched everybody's hearts and made everyone determined to change their life for the better. I'm so happy and grateful that I had such a fun, easy, relaxed day of packing today because I'm going out of the country, so I need to pack today. So I thought that I'll do it today because I know my coming days are going to be slightly worked up. So वो सारी चीजें, तो इस तरह आज मुझे जो जो करना है वो मैंने हैव अ मैजिकल डे में लिख लिया. सब कुछ लिख लिया सुबह से रात तक जो मेरा है, तो मैंने पहले ही डिजाइन कर लिया. ये हो गया. अब मैग्निफिसेंट आउटकम जो होता है वो होता है दैट जैसे वेबिनार लेने के जस्ट पहले, ठीक है, आई एम रीआइटरेटिंग. मैंने सुबह तो ये लिखा ही था, आई एम बिकॉज वो मोटे मोटे वो सिर्फ 3 चीजें हैं जो आज जो मोटी मोटी होनी है. पहले है मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है. दूसरा है मुझे आज किसी को कुछ गाइडेंस देना है अबाउट देयर लाइफ, सो आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज बिकॉज किसी की जिंदगी की बात है. और तीसरा मेरा आज वेबिनार है विच विल बी अटेंडेड बाय सो मेनी इन VLCC आउटसाइड बिकॉज वी गिव लिंक्स टू एनीवन एंड एवरीवन. इट्स अ फ्री वेबिनार टुडे. सो मुझे ये 3 चीजें मेरी मोटी मोटी है. तो ये करने के पहले मैं मैग्निफिसेंट आउटकम करूंगी कि थैंक यू. पता नहीं है ना मुझे मेरी एनर्जी क्या होगी उस टाइम, ऑल्दो अपनी एनर्जी मैं आप करके रखूंगी पूरे दिन, ठीक है, बट यू नेवर नो क्या एनर्जी है. तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म करके उसका आउटकम देखूंगी दैट थैंक यू यूनिवर्स, बिकॉज वो सिर्फ इवेंट ओरिएंटेड है मैग्निफिसेंट आउटकम. इट इज नॉट अ डे ओरिएंटेड. डे में तो 50 चीजें और हो रही है ना. और मैग्निफिसेंट आउटकम इज नॉट ऑलवेज फॉर एक्सपेक्टेड इवेंट्स, इट इज ऑल्सो फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए भी है कि पता नहीं था मुझे कि ये ईमेल आई है. जैसे मैं ऑफिस जाऊं 10 बजे एक मेल आई हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, मुझे उसका आंसर करना है. या फिर कोई मुझे कहता है आई रियली नीड टू टॉक टू यू, लाइक आई एम ट्रबल्ड समथिंग एंड दिस एंड दैट, सो आई विल फिक्स अप अ टाइम एंड आई टॉक टू दैट पर्सन. तो मैं उसके पहले मैग्निफिसेंट आउटकम करूंगी. तो मैग्निफिसेंट आउटकम चलता फिरता पोर्टेबल है, कुछ कुछ होता रहता है. उसके आउटकम को डिसाइड करने के लिए हमने मैग्निफिसेंट आउटकम किया. वो हैव अ मैजिकल डे का पार्ट नहीं था. हैव अ मैजिकल डे में हमको बस उतना ही पता होता है जितना होने वाला है, बट दिन में बहुत अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनमें भी तो हमको जादू लेके आना है. वो मैग्निफिसेंट आउटकम होता है. और टू डू लिस्ट होती है आपके पेंडिंग काम जो चल रहे हैं, जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो. आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, एक हफ्ते के बाद हो रहे हैं, दैट डजंट मैटर, ठीक है, बट आपने विजुअलाइज करके उसको सरेंडर कर दिया है.
अब वो अपने पेस पे होंगे। हो सकता है कि 3 दिन वो इंसान ही दिल्ली में नहीं हो जिससे जिससे आपको काम था, जिसके कारण आपका काम रुका हुआ था, तो आपका चौथे दिन होगा। ये हमारे कुछ पेंडिंग काम है जो आज कल परसों में, जैसे फ्लाइट बुक करानी है कहीं के लिए, ठीक है, कुछ सामान खरीदना है, सो आई हैड टू शॉप फॉर सर्टेन थिंग्स, जो मैंने कल की है। जब वो मेरे दिमाग में तब से थी जब मैं पुणे गई, पुणे में मंडे गई थी, मैं फ्राइडे रात को वापस आई हूँ। बट मुझे पिछले मंडे मॉर्निंग में मैंने ये लिखा हुआ था दैट टू शॉप फॉर दीज आइटम्स, एंड आई डिड दैट yesterday, एंड मिस्टिकली क्योंकि मैंने ग्रैटिट्यूड पिछले मंडे को दिया था अपनी टू डू लिस्ट में, कल वो सब मेरी आंखों के सामने आते जा रहे थे। आई मेड एन ऑनलाइन थिंग ओनली बिकॉज आई हैव टू पे मोर अटेंशन टू ऑफिस नाउ। सो वो मेरी आंखों के सामने वो चीजें आती रहती थी जो मैंने लिखी थी ना। तो सोचो कि वो मैंने पिछले मंडे लिखी थी टू डू लिस्ट में, वो कल एग्जीक्यूट हुआ और उसका बहुत अच्छा कंक्लूजन हुआ। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो इसीलिए हम बिल्कुल भी लेट्स नॉट पुट अ ब्रेन इनटू इट, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, दैट इज व्हाट यू वांट टू डू। सुबह हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस रोज किया करो विदाउट फेल, बिकॉज उससे लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज, होप, चांस वाली चीजें कन्वर्ट होके सर्टेनिटी होती जाती हैं। और मैजिकल मैग्निफिसेंट आउटकम कोई भी वो इवेंट के पहले, इवेंट स्पेसिफिक है, और टू डू लिस्ट है जो आपके अभी काम है, जो आपके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में सारे जो आपके कुछ टाइम से पेंडिंग है, उन काम को आप लिख के रखिए। और उसमें 3 को आप विजुलाइज भी कर लो। वो अपने पेस पे जब सही वक्त के हिसाब से होते जाएंगे और वो अपने आप होगा, अपने आप, लाइक इट विल हैपन बिकॉज वी सरेंडरिंग that way. So they are gratitude for certain things during the day only, all 3 of them. There's no doubt about it. Okay, in whichever way you want to do it, आपको हाईलाइट्स लिखने हैं हैव अ मैजिकल डे में। कभी कभी मैं ये भी करती हूँ, मैं सिर्फ हाईलाइट्स लिखती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है सुबह इतना कभी कभी, तो मुझे लगता है कि ऑफिस टाइम से जाना होता है, तो मैं सिर्फ दिन की हाईलाइट्स लिख लेती हूँ। जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम में करते हैं ना 3 चीजें, तो मैं 3 ही चीजें लिखती हूँ कभी कभी सुबह। सो आई डोंट पुट माई ब्रेन इन टू इट एट ऑल. I just do that. I just write those 3 things, that thank you, universe, that I had such an amazing meeting today, that I could really present my point so well, so with so much clarity, and everybody was so understanding, understood my point, and it was a beautiful outcome. And the meeting ended with everyone having a smile on their face. अब ऑफिस मीटिंग के लिए भी जो बहुत टेंशन वाली हो सकती है, उसके लिए भी मैं ये लिख देती हूँ पहले से, तो अपने आप एवरीबडी एंड्स लाइक ओके बाय, इट वाज नाइस सीइंग ऑल ऑफ यू एंड दिस एंड दैट, इस तरह करके एंड होती है। एंड देन आई थैंक गॉड, आई से थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग एवरीथिंग हैपन सो इजीली. So that is how it is. So let's not get into the technicality. The whole idea is that for everything and anything in the life, everything between heaven and earth, we have to be grateful. है ना? बिकॉज वो फिर अगर हम बहुत प्रोसेस में जाएंगे तो वो टेक्निकलिटी हो जाती है. सो हैव अ मैजिकल डे, सुबह सुबह कर लो. और टू डू लिस्ट आपकी आज की नहीं है, या आपके अगले 1 हफ्ते की हो सकती है, अगले 10 दिन की भी हो सकती है. और मैग्निफिसेंट आउटकम specific oriented towards that specific मतलब could be the reply to an email, could be that phone call, could be that something आपको जाना पड़ रहा है, could be that abrupt meeting, you go to the office. मेरे ऑफिस में बहुत होता है, मैं पहुंचती हूँ और उसमें आया हुआ होता है that this is let's all team meet at 12 noon. So that way, that's what it is. Thank you so much, ma'am. By this, I answered lots of my WhatsApp chats in advance. Thank you. Thank you so much. Thank you.